میں نہ ڈر ہوں، میں بہادر ہوں، اور نہ ڈر اور بہادر بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ مریم نواز، مریم اورنگزیب، یہ عطا تارڑ، یہ جتنے بھی بھائی صاحب ہیں، یہ مطلب کل کے بچے ہیں ہمارے۔ ان موچھوں سے میں نے وہ ٹرک کھینچتا تھا پہلے میں۔ آپ کو پتا ہے میں جب پانی پیتا ہوں نا، ایک بندہ رکھا ہوا ہے جو مونچھیں اوپر اٹھاتا ہے پھر میں پانی پیتا ہوں۔ تو مونچھیں آپ کے ہونٹوں کا گھونگھٹ ہے۔ ہاں جی، یہ میرے ہونٹوں کا گھونگھٹ ہے۔ واہ کیا بات ہے آپ کی۔ ٹرمپ اگر عمران خان وہاں پہ کھڑا ہو جائے تو ٹرمپ اس کی حمایت میں بیٹھ جائے گا۔ جس دن خان چاہے گا چپ کر کے باہر نکال کے لے کر آ جائیں گے۔ دیکھیں بدقسمتی سے کنڈی جو ہے وہ میرا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو اون نہیں کرتا۔ میں تو ابھی اس کے گاڑی کا جو پیٹرول ہے وہ بھی بند کر دوں گا۔ میں ایک فلم بنا رہا ہوں، گنڈا پور کی کنڈیریاں۔ اچھا، اپنی فلم جو ہے نا آپ خان صاحب کے جیل سے ریلیز ہونے سے پہلے ریلیز کر دیجیے گا، ورنہ تو وہ فلاپ ہو جانی ہے پھر، کیونکہ خان صاحب اگر آ گئے تو ان سے بڑی تو فلم کوئی ہے نہیں پھر، آپ کو پتہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی عباس۔ آج ہمارے شو میں پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کی ایک ایسی قداور شخصیت ہیں جو شائستگی سے اور آرام سے بھی بات کرے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈمی اسٹوڈیو سے آج موجود ہیں علی امین گنڈا پور۔ سر ویلکم ٹو دا شو، اور بتائیں یہ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے صرف میرے سر کا پوچھا ہے یا میرے پورے دھڑ کا، میری ٹانگوں کا، میرے بازو کا اور میرے ہاتھوں کا حال احوال بھی پوچھا ہے؟ اگر سب کا الگ الگ پوچھوں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، تو آپ مجموعی طور پر بتا دیں دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کا مہمان ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے عزت سے بلایا یہاں پہ، اور مجھے یہاں پہ آپ کا یہ جو کیمرہ مین ہے وہ کہتا ہے ہاتھ کو یوں نہ کرو، یوں نہ کرو، مطلب شور ہو رہا ہے، کیا ہے مطلب؟ میں یہاں پہ اسکول میں آیا ہوں؟ چلے چھوڑیں ان بھائی باتوں میں کو، انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ۔ چلے آپ انٹرویو کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اگر آپ میری بات کو نہیں سنیں گے تو میں پھر بھی اتنا اونچا بول سکتا ہوں کم سے کم کہ میں یہاں پہ 3 گھنٹے بیٹھ کے بولتا رہوں گا، بھلے آپ اپنے یہ میک شیک، یہ کیمرے شیمرے بند کر دیں آپ۔ اچھا آپ غصہ نہ میں یہاں کریں۔ پہ ہاتھ بھی لگاؤں گا اور میں پہ یوں بھی کروں گا۔ میری عادت ہے اصل میں وہ چیٹنگ کرتا ہوں نا دونوں ہاتھوں سے کرتا ہوں، اور وہ پیانو شیانو بھی بجا لیتا ہوں میں۔ اچھا ڈنگا پور صاحب، آپ غصہ نہ کریں، آپ یہ بتائیں آپ اپنی شعلہ بیانی اور جذباتی تقاریر کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں یا پھر جس سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے وہ اصل آپ کی شہرت وجہ ہے؟ دیکھیں آپ کا نام کیا ہے؟ علی عباس۔ علی عباس۔ علی عباس سے مجھے ایک بات یاد آئی، آپ علی عباس شاہ ہیں؟ اچھا، وہ میں نا 2010-11 میں نا ایک لڑکی سے بات کرتا تھا فیس بک پہ، اس کا نام تھا علیشا۔ اس نے وہ پاپا کے پری والی ایک تصویر بھی لگائی ہوئی تھی بلی کے ساتھ والے نا۔ 2 مہینے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ علیشا نہیں تھے، وہ تو علیشا تھا۔ آپ تو نہیں تھے وہ؟ نہیں، میں ایسے کام نہیں کرتا۔ تو وہی اسی نے آپ کو پھر پکڑوایا تھا، پھر آپ کی یہ مونچھیں بھی کٹ گئی تھی اور بال بھی ٹرم ہو گئے تھے آپ کے؟ نہیں، وہ بہت بات کی بات ہے۔ آپ جو ہے نا بہت پرانی باتیں کر رہے ہیں، ایسی پرانی باتیں نہ کریں، مجھے پھر غصہ آ جائے گا۔ اور مجھے جب غصہ آتا ہے اس وقت پھر میں آگے کچھ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا بول رہا ہوں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ پنجاب حکومت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں پنجاب حکومت سے بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ آپ کو کس نے کہا ہے میں پنجاب حکومت سے ڈرتا ہوں؟ او بھائی صاحب، میں جو ہے وہ میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں۔ میں نہ ڈر ہوں، میں بہادر ہوں، اور نہ ڈر اور بہادر بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ مریم نواز، مریم اورنگزیب، یہ عطا تارڑ، یہ جتنے بھی بھائی صاحب ہیں، یہ مطلب کل کے بچے ہیں ہمارے۔ اچھا میں یہ ایک بتائیں، سردار بندہ ہوں۔ میرا نام آپ کو آتا ہے پورا؟ ہاں میں بھی اسی پہ آ رہا تھا کہ میرا نام پورا آتا ہے آپ کو؟ جی مجھے آتا ہے آپ کا نام پورا۔ آپ کی سانس پھول جائے گی اگر آپ میرا نام لیں گے پورا تو۔ میں ابھی اسی پہ آ رہا تھا کہ ہماری میڈیا انڈسٹری میں جو ہماری نازک مزاج اینکر پرسنز ہیں وہ اکثر یہ شکوہ کرتی ہیں اسٹوڈیو میں کہ بھائی ان کا نام کچھ شارٹ کریں، نام پورا پکارنے میں ہی سانس پھول جاتا ہے۔ تو کچھ شارٹ آپ کا نام ہے گنڈا پور، کچھ کر لیں اس کو ایسا؟ نہیں دیکھیں، یہ میری بات، آپ پھر مجھے غصہ دلانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے بہیو کریں گے تو پھر مجھے غصہ آ جائے گا، اور اگر مجھے غصہ آ گیا پھر آپ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ میں جس طرح سے پنجاب کی اینٹ بجا دوں گا اسی طرح سے میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے صوفے کی اینٹ بجا دوں گا میں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں پنجاب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، پنجاب ہی نہیں پہنچ پا رہے، آپ ڈرتے ہیں اتنا ہے پنجاب حکومت سے؟ پنجاب حکومت سے میں بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ بات ہو رہی تھی آپ کے صوفے کی، اتنی طاقت ہے مجھ میں صوفے کو اٹھا کے اپنی گاڑی میں رکھ کے لے جاؤں گا۔
क्योंकि मैं जिस कुर्सी पे बैठता हूँ वो कुर्सी मेरी हो जाती है फिर। तो अभी तो आपके पास एक कुर्सी है ना खैबर पख्तूनख्वा की। आपको लग रहा है शायद मैं आपके साथ कहीं मैट्रिक वैट्रिक में क्लास में पढ़ता रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ आप जो है ना थोड़ा सा ज़रा आराम से बात करें। मैं अगर आपके साथ आराम से, पेशेंस के साथ, बुर्दबारी के साथ, वो जो भी लफ्ज़ होते हैं आप लगा लें, बर्दाश्त के साथ, वो क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में भी कुछ कहते हैं, पता नहीं क्या, पेशेंस। बीए में मैंने पढ़ा था, हाँ, पेशेंस। मैं अगर पेशेंस के साथ पेश आ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पेशेंस रखता हूँ। मैं रखता वक्ता किसी की भी नहीं हूँ। जो भी बंदा होता है उसको मैं आगे से होकर मिलता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको, आपके इतने चाहने वाले और ख़ास आपके इतने चाहने वाले सड़कों पर हैं और वो एहतजाज और जलसे की जो पूरा एक माहौल बना हुआ है, तो आपको इतनी ताख़ीर क्यों हो गई वहाँ अभी तक पहुँचने में? लोग आपके मुंतज़िर हैं। जिस दिन मुझे लाहौर आना था उस दिन मैं पंजाब में आया था, ठीक है। जब हम लोग अटक का पुल क्रॉस किया ना हम लोगों ने, उससे पहले तो आपको पता है मेरी अपनी बादशाहत है, मेरी अपनी हुकूमत है, मेरी अपनी कुर्सी है, मुझे कोई हिला भी नहीं सकता। जैसे ही मैं अटक में दाखिल हुआ ना, फिर उसके बाद हो जाती है पंजाब की ज़मीन शुरू। और पंजाब आपको पता है किसके पास है? मरियम नवाज के पास है। तो हम लाहौर में गए तो हमारा जो ड्राइवर था अमीर मोहम्मद, उसने मुझे कहा कि भाई यहाँ पर वो लस्सी और छोले और वो क्या नान नून बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई वो भी हम खा लेते हैं। और वो पाए मिलते हैं ना फज्जे के वहाँ पे लाहौर में, जी बहुत मशहूर है। तो पाए लिए हम लोगों ने फज्जे के। फिर उसके बाद हम लोग गए तो उन्होंने हमें लस्सी का गिलास दिया। तो वो लस्सी का जो गिलास था ना वो उन्होंने कहा है कि भाई आधा इसको खाना है और आधा इसको पीना है। अच्छा। तो मुझे तो पहली बार पता चला कि लाहौर में लस्सी खाई भी जाती है। फिर और वो जो लस्सी का गिलास था, मैंने कहा भाई लस्सी का गिलास से कोई काम नहीं चलेगा, पूरी बाल्टी ले आओ। फिर वो पूरी बाल्टी ले आए। बस मैंने बाल्टी पूरी गड़का ली, समझते हैं आप, मतलब मैंने पूरी बाल्टी चढ़ा ली, मतलब पी ली मैंने, ठीक है, चढ़ा नहीं ली, पी ली मैंने। जब फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई। मैं उसके बाद फिर गाड़ी में सो गया अपना एसी उसी चला के। एसी टीसी गाड़ी है मेरे पास, आम गाड़ी नहीं है मेरे पास, 3 करोड़ की गाड़ी है वो। उसके बाद जब मैं गाड़ी में सो गया तो फिर मेरी आंख खुली मगरिब के वक्त। तो फिर पता चला कि भाई मैं तो आया था जलसे के लिए, टाइम निकल गया। फिर मैं जलसे पे गया, वहां पे जाके मैंने छोटी सी तकरीर की। तो बहरहाल लस्सी जो है ना वो बहुत बेहतरीन लस्सी थी। मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब मेरे पास अब अल्फाज नहीं है कि मैं क्या अल्फाज मैं समझ गया हूँ, लेकिन थोड़ी सी वजाहत चाहूंगा ताकि हमारे नाजरीन भी समझ जाएं। वो गवाल मंडी में आपने जो गिलास पिया था, हाँ जी, लस्सी थी या शहद था जिसके बाद आप इतना तवील ताखीर तक आप सोते रह गए? नहीं वो मतलब शायद वो शहद की बोतलों वाली बात कर रहे हैं? हाँ। नहीं वो मेरी गाड़ी में पड़ी होती हैं। अच्छा। तो हाँ, वो अगर देखें मेरी बात सुने, सारी चीजें जो है ना वो खोल के ना रखें। तो आप बस वहाँ सोकर उठे और फिर हाजिरी लगाकर आप वापस आ गए बस? हाँ जी, फायदा क्या हुआ फिर आपके ऐसी हाजिरी लगाने का? मैं वहां पे जब गया और जब वहां पे इमरान खान का शेर धाड़ा तो लोग हैरान हो गए, लोग परेशान हो गए कि ये कौन सी बला आ गई है खैबर पख्तूनख्वा से। पंजाब के लोगों ने तो इस तरह की थरथल्ली वाली आवाज ही पहली बार सुनी थी। तो शेर के धाड़ने पे जो पंजाब की शेरनी है उसका क्या रद्द अमल था? अजय पंजाब में कहाँ शेर रहते हैं बताएं मुझे? वो शेर वाली जमात है ना उसकी, तो वो शेर नहीं हुई। देखें वो जो शेर है ना वो सही वाले शेर नहीं है, ठीक है। और वो जो जिसका आप कह रहे हैं कि वो शेरनी शेदी, वो तो सिर्फ अपनी तकरीरों में मुझे तनकीद का निशाना बनाती रहती हैं। कभी मेरे साथ आके मनाजरा करें, आकर देखें कि मेरे सूबे में कितनी तरक्की हो रही है। हम अपने सूबे में 300 डैम बना रहे हैं। आप ये पंजाब में डैम बन रहे हैं इतने बड़े, 300 डैम बना रहे हैं या टैंक बना रहे हैं? डैम बना रहे हैं। डैम अच्छा, ये जिससे बिजली पैदा करते हैं ना, पानी इकट्ठा करते हैं। तो आपने 300 का जिक्र किया ना, तो मैंने कहा 300 डैम। मतलब ये नहीं है कि 3 बना रहे हैं, हम 300 बना रहे हैं। और इसके अलावा जो मेन वाले डैम है वो भी हमारे पास हैं। पंजाब की मैं बिजली बंद कर दूंगा मैं, वो तो ये समझते क्या है मुझे? चले खैर छोड़े इन बातों का। आप ये बताएं कि आपको तहरीक इंसाफ का बदर मुनीर क्यों कहते हैं? वो असल में इसलिए कहते हैं कि मेरी थोड़ी सी ज़रा जो तबीयत शबीयत जो है ना, थोड़ी सी ज़रा वो राइफल वाला सीन आपको बताएं। कौन सा? राइफल वाला। हाँ। तो जो राइफल वाला सीन है ना, जब मैं राइफल से गाड़ी के शीशे तोड़ रहा था
उस वक्त उनको लगा कि ये जो है ना वो जो पश्तो फिल्मों का बदर मुनीर है ना वो आ गया, और वो मतलब हीरोइन की जो इज़्ज़त है उसको बचाने के लिए गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है, और अभी हीरोइन की इज़्ज़त बचा लेगा। अच्छा, तो इसलिए वो मुझे कह रहे थे कि बदर मुनीर तो आपने देखा होगा, पश्तो फिल्मों वाला ठा 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 करके, जी, मतलब बिल्कुल जो देखा हुआ है। एक ही गन से 250 बंदा मार देता था। अच्छा ये बताएं, जब आप वज़ीर आला मुंतखब हुए और आपकी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकातें भी हुई और बहुत अच्छी उसमें आपने गुफ्तगू की कि कौन से मिलकर प्राइम साथ, मिनिस्टर से जिसको मैं मानता नहीं हूँ? जी आप साथ मिलकर चलेंगे, लेकिन शहबाज अब शरीफ। आप इतना सख्त रवैया क्यों इख्तियार कर लिया और वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत के खिलाफ आप बहुत तकरीरें करते हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, पहली बात तो ये है कि टाइम नहीं है इतना मेरे पास, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, आपके ये जो वज़ीर आज़म वाला सवाल है ना, तो इस पे नो कमेंट्स, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। अच्छा ये बताएं कि आप और आपकी जो पार्टी के लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि आपकी जमात सबसे बड़ी पार्टी है मुल्क की। हाँ जी। तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी है, पंजाब में जो है मुस्लिम लीग नून का ज़ाहिर सी बात है उनकी हुक्मरानी है, आप सिर्फ KPK तक महदूद रह गए, तो आपका पंजाब से भी सफाया हो गया आपकी पार्टी का? देखें, मुझे एक बात बताएं अली अब्बास, आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 32 साल। आपकी 32 साल उम्र है ना, आपसे PTI बड़ी है, पता है आपको? क्योंकि इमरान खान आपसे बड़ा है। जी खान साहब तो बड़े मुझसे। ठीक है ना। तो मसला ये है भाई साहब, मेरे बहुत ही प्यारे और नन्हे मुन्ने से एंकर साहब, के तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। तहरीक इंसाफ अगर अमेरिका में भी खड़ी हो जाए ना, आपको पता है सदर तो वैसे ही बना लेंगे हम। ब्रुकलिन का नहीं, ब्रुकलिन का नहीं, अमेरिका का। अच्छा, आप अच्छा। समझते क्या हैं? हाँ आपने अभी तक PTI को समझा ही नहीं है। अच्छा, ये अगर तो मैंने मसला ही नहीं है। देखें मेरी बात सुने, ये ट्रंप जो है ना, ट्रंप अगर इमरान खान वहां पे खड़ा हो जाए तो ट्रंप उसकी हिमायत में बैठ जाएगा। जी मेरे ख्याल से आप कुछ ज़्यादा ही बोल गए। देखिए, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल गया, मैं बिल्कुल आपको सही बात कर रहा हूँ। ये जो अमेरिका में जो सदर बनता है ना, आपको पता है यहाँ पे तो कोई भी सदर बन सकता है। ठीक है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के भी आपके काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि भाई हम जो है ना अमेरिका के सदर बन जाएं। अच्छा, और कुछ लोग अपनी फीलिंग भी रखते होंगे कि हम अमेरिका के सदर हैं, जैसे अमेरिका हमारे सिवाय चल ही नहीं सकता। ठीक है, और वो होगा कहाँ का? गज्जू मत्ता का, जहाँ पे उसको जानता ही कोई नहीं होगा। वैसे उसका जो मोहल्लेदार हमीद भट्टी है वो भी नहीं जानता होगा उसको। अक्सर पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जो लीडर हैं, उनका ख्याल यही है कि वही अमेरिका को चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको कह रहा हूँ ना, असल में आपको ज़रा बात समझ आती है ज़रा देर से। जी ठीक है, आप ज़रा, मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि आप नन्हे मुन्ने एंकर हैं। नन्हे मुन्ने एंकर हैं, आपका दिमाग है छोटा सा, भेजे में ज़रा, अब बात जो है ना वो ज़रा देर से जाती है। चलो एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि हाँ जी। आपकी पार्टी, आप बार बार ये कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी है, हाँ जी। इतनी बड़ी पार्टी, उसके साथ लाखों लोग, उनके वोटर सपोर्टर्स, करोड़ों कह लें, देखिए, चले हाँ, करोड़ों कह लें, करोड़ों। आप खुश हो जाए। आप ये बताएं कि अपने आप जो आपके कप्तान साहब है उनको अभी तक जेल से बाहर क्यों नहीं ला सके फिर आप? देखें, अभी कप्तान का मूड नहीं है। ही सेड अभी जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई, कोई मौसम अच्छा हुआ नहीं है, इसलिए भाई मैं जेल में अंदर ACRA लगे हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बाहर ना निकलने की ज़रूरत है। जिस दिन खान चाहेगा चुप करके बाहर निकाल के लेकर आ जाएंगे। वाह। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त वैसे मेरी जेब में खान का मास्क भी है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं आजकल खान का मास्क लगा के घूमता हूँ ताकि लोग आपको खान साहब समझे, नंबर बनते हैं ना, ज़रा समझे ज़रा उससे। नाज़रीन हमारे साथ आज डमी स्टूडियो से आए हुए हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अभी यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे साथ जैसा कि मौजूद है पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात की पहलवान शख्सियत अली अमीन गंडापुर। अली अमीन साहब, ये बताएं आपका नाम इतना मुश्किल क्यों है? यकीन माने मैंने स्क्रिप्ट देख कर पूरी रात याद किया, कभी गंडापुर निकल रहा है, कभी गंदापुर निकल रहा है, बहुत माजरत, कभी डंगापुर निकल रहा है। तो मैं ये डर रहा था कि प्रोग्राम में भी आज कोई ना ऐसा कोई मेरे से कोई टेक्निकली कोई मसला ना हो जाए कि आप नाराज़ होकर उठ के चले ना। देखिए, आपको मैं जो है ना एक मज़े की बात बताऊं। मज़े की बात ये है कि जो अंग्रेज़ी में आप मेरा नाम लिखते हैं ना, तो अंग्रेज़ी में मैं अपना जब नाम लिखता हूं तो मैं खुद भी कंफ्यूज होता हूं, क्योंकि मेरा नाम जो है वो अंग्रेज़ी में तो आपको पता है डाल वाला सीन तो होता ही नहीं है।
वहाँ तो चलता है दाल वाला सीन, तो आप जो भी लिखें DA तो फिर वो डाई बनता है ना, तो फिर वो लफ्ज जो है ना वो थोड़े से ज़रा आगे पीछे हो जाते ये हैं। आप थोड़ा नाजुक किस्म का मौजू छेड़ रहे हैं ये। जी जी, मैं जो है देखें, मैं बहुत अदब अदाब और तमीज़ और लिहाज से बात कर रहा हूँ। ये जो आपने ये जो ज़बान और लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना, मैं इस तरह के लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन आप चूँकि एक नन्हे मुन्ने सहाफ़ी हैं, इसलिए उस हिसाब से मैं मतलब आपके साथ इस तरह से बात कर रहा हूँ। और दूसरा, आपने फिर दोबारा फिर मुझे सर कहा, मतलब आपको मतलब मेरे मतलब बाजुओं की और टांगों की खैरियत से कुछ लेना देना नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे मतलब इतने हसीन बाल हैं, इतनी बेहतरीन मैंने मूछें रखी हुई हैं, आपकी को मूछें हैं। मगर इस तरह की मूछें जो होती है वो बच्चे खुद अपनी पेंसिल से मूछें बना देते हैं और मम्मी पापा को दिखाते हैं कि मम्मी पापा देखें मेरी मूछें निकाल आई। ये ऐसी दाढ़ी और मूछें नहीं रखते, मूछें रखते हैं सही मतलब सरदारों वाली मूछें रखते हैं। तो आपके जो घर में छोटे बच्चे होंगे वो झूल तो लेते होंगे आपकी मूंछों पे? नहीं, मैं असल में पहले मुझे बहुत शौक था, मैंने इन मूछों से मैंने वो ट्रक खींचता था पहले मैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक मतलब हमारा ट्रेन का मुकाबला हुआ, लेकिन मसला ये था कि वो ट्रेन वाले ड्राइवर ने कहा कि भाई मैं जो है ना ट्रेन, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है, इसलिए आप इसको मूछों से नहीं मतलब वो कर सकते, क्या करते हैं वो खींचते जो हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बस कार ट्रक और बंदे, और एक मरतबा तो वो सैलाब आ गया ना, ये नाएं जो आते हैं ना वो पहाड़ियों से जो पानी आता है, वहाँ पे बहुत सारा सैलाब आ गया। सैलाब जब आया तो वहाँ पे उन्होंने पत्थर रखने थे, तो पत्थर लोग जो है वो अपने हाथों से रख रहे थे। मैं भी अपने हाथों से पत्थर बड़ी कोशिश की मैंने, लेकिन फिर भी उसके बाद नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपनी मूँछों से पत्थर बांधे और वहाँ पे मैंने बंद बनाया, तो लोगों ने फिर मुझे, मेरा तो नाम बचपन से ही बुलडोज़र पड़ गया था। अच्छा, आपकी ठीक है, आपकी मूछें लंबी है, लेकिन मूछों के लिए बात इतनी लंबी तो ना करें ना कम से कम। बालों का बताएं, बालों में क्या लगाते हैं? इतने दराज जुल्फें आपकी, इसका क्या राज है? देखिए, बालों में मैं एक तो लगाता हूँ तख्ती वाली मिट्टी। तख्ती वाली मिट्टी नहीं होती, वो गाची जो होती है, मुल्तानी मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो वाली मिट्टी लेकर उसको पानी में थोड़ा सा भिगो के, थोड़ा सा उसमें तेल डाल के, थोड़ा सा नारियल का तेल डाल के, थोड़े से जो है ना वो डाल के, क्या हल्दी हुल्दी जो होती है वो डाल के थोड़ी सी, तो उसके बाद फिर आप, अगर आपको चाहिए उसमें थोड़ा सा नरम मुलायम हो और थोड़ा सा ज़रा चमकदार हो, तो उसमें आप धनिया का थोड़ा सा पाउडर भी डाल सकते हैं, मतलब 1-2 चम्मच। तो उसके बाद फिर मैं वो लेप बना के लगाता हूँ अपने सर पे, तो माशाल्लाह मेरे बाल जो है वो बड़े बेहतरीन मतलब रहते हैं। और अब तो खैर मैं पोनी शोनी भी नहीं करता, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता। आपको पता है बड़े बाल जो है ना वो केयर मांगते हैं, आपने शायद कभी रखे नहीं है। एयर, हवा हैं? केयर केयर अच्छा, केयर 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 मतलब केयर वाली, हाँ देखभाल वाली केयर। मेरी असल में ज़रा अंग्रेजी का ज़रा मेरा हाथ होला है ज़रा। अच्छा, ये बताएं, इतना ऊंचा क्यों बोलते हैं? आराम से, शाइस्तगी से आपके तो लीडर हमेशा आराम से बात करते हैं, तो उनसे कुछ नहीं सीखा आपने? देखें, मैं हमेशा जो है ना जोश के साथ बोलता हूँ, जोश के साथ बोलता हूँ, ठीक है। जोश। और मैं आराम से तो बोल ही नहीं सकता। आपको पता है, मैं तो जब घर जाता हूँ बच्चे सो रहे होते हैं, बच्चे उठ जाते हैं नींद से, बल्कि जो हमारे हमसाए हैं ना वो आके दरवाजा खटखटाते हैं कि भाई जान अपने बंदे को जरा चुप कराओ, कि मतलब बच्चे साढ़े सोए हुए ने। तो मैं तो मतलब भाई मैं तो अपने रंग में बोलता हूँ, ठीक है। हम डेरा इस्माइल खान के वो मलंग हैं जो अपने रंग में बोलते हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आप तो बड़ा कहते थे कि हम अफगानिस्तान से बात करेंगे, उन्होंने तो आपको मुंह भी नहीं लगाया। देखिए, अफगानिस्तान की जहाँ तक बात है कि अफगानिस्तान जो है वो हमारा एक बरादर मुल्क है और हमारे साथ उसकी सरहदें मिलती हैं, ठीक है। दिल नहीं मिलते और बस। वो कहते हैं ना कि आप जो है रिश्तेदार तो तब्दील कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हमसाए तब्दील नहीं कर सकते। तो हमसाए तब्दील नहीं कर सकते, दिल तो हमारे उनके साथ वैसे भी नहीं मिलते, ठीक है। देखें, दिल का छोटा होना भी नुकसान है, बड़ा होना भी नुकसान है। सही बात। और मैंने सुना है कि उनके वो जो दिल होते हैं वो थोड़े से ज़रा बड़े होते हैं अफगानियों के, तो इसलिए जो दिल है ना, दिल का उनके साथ ज़रा मेरा जो है ना वो मैच नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो रही सही कसर, आपको पता है, वो तकरीब में निकाल दी, वो जो उसमें कौमी तराने में खड़े नहीं हुए। फिर उस पर मैंने कहा कि जी वो म्यूज़िक को ना पसंद करते हैं, तो उस पर लोगों ने मेरी और रेट लगाई। मतलब मैं कहाँ जाऊँ, बताएं मुझे। खैर छोड़े इन बातों को, ये बताएं कि आजकल खबरों में सुनते रहे कि
जो नून लीग है उनकी जो हुकूमत है वो आपसे माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? कुछ सोच विचार किया आपने? नहीं, मुझे एक बात बताएं, मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूं? मतलब उनका बचकाना जहन है तो आपका भी बचकाना जहन है ना। मतलब उन्होंने जो उठाया, जो उन्होंने बोला, आपने वो उठा के ठोक दिया कि भाई पूछो अपने गेस्ट से। देखे मेरी बात सुने, आपके पास कैमरा होगा, आपके पास माइक होंगे, आपके पास ये 6 कैमरे होंगे, ये आपके पास, यू हैव टू पावर, यू मीडिया हैज पावर, आई नो इट एंड आई रिस्पेक्ट ऑल द मीडिया एंड ऑल द चैनल्स एंड अखबारात एंड रिसालेज एंड जितने भी ये सारे हैं। मेरा ज़रा अंग्रेज़ी जो है ना वो थोड़ा इधर उधर हो जाती है, मैं सबको ट्रांसलेट थोड़ा करके समझ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरा ज़रा अंग्रेज़ी वाले पास से ज़रा हाथ हौला है, आपको पता है। तो ये भाईजान, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं कि ये मतलब आपके पास एक पावर है तो उस पावर का आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब उन्होंने जो बात की, आपने वही बात ठोक दी मेरे सामने, क्योंकि बिकॉज यू हैव पावर, यू हैव अ माइक। चले दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। हाँ जी, पंजाब जलसे का भी हो गया और अभी जो कुछ चल रहा है पिंडी इस्लामाबाद पे वो भी हम देख रहे हैं। जो मियाँ वाली जलसा था उसका कुछ अहवाल बताएं। देखें मियाँ वाली में मसला ये है कि जब मैं मियाँ वाली में दाखिल हुआ ना, डेरा इस्माइल खान, आपको पता है डेरा इस्माइल खान के साथ ही तो मियाँ वाली पड़ता है। तो जब मैं डेरा इस्माइल खान से निकला मियाँ वाली के लिए, वो जो चश्मे वाला रोड देखा हुआ आपने, वो जो आपने कहाँ देखा होगा, आप तो आपको क्या पता वहाँ पे चश्मा वश्मा क्या है कहाँ पे। वहाँ पे भाई साहब जो रोड है, उस रोड पे जब मैं आया ना, तो जहाँ पे आगे वो बिजली घर बना हुआ है, तो वहाँ पे एक है आगे बिजली घर। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा ना, तो वहाँ पे इतने ख्याल शुरू हुए ना, मूसा ख्याल, दित्ता ख्याल, इत्ता ख्याल, अक्का ख्याल, उक्का ख्याल, तो वो इतने ख्याल शुरू हुए, सारे जो ख्याल जो थे ना, मैं उनमें रास्ता भूल गया। ख्यालों में, ख्याल जो है आपको ख्यालों में ले गए? हाँ जी, तो फिर मैं बस वो खेल भी बन गया वहाँ पे, खेल वाला खेल भी हो, जिस तरह अताउल्लाह ईसा खेल भी है ना, वो वही वाला खेल है, ईसा खेल भी वाला खेल है। ये बताएं, जलसों के लिए इतना पैसा किधर से आता है आप लोगों के पास? कौन देता है इतना पैसा? यार ये बड़ा जो है ना, आपने बड़ा अंदर वाला सवाल किया है, बड़ा मुश्किल सवाल किया है, और इस मुश्किल सवाल का जो जवाब है वो भी बहुत मुश्किल है। दें थोड़ा मुश्किल सवाल भी, जवाब भी सुन लें हम, थोड़ा सा बता दें। मतलब आप चाहते हैं कि मैं अपना मुंह खोलूं? मुंह खोलें। आपको खबर चाहिए? मैं चाहता हूँ आपका जो मुंह मूंछों से ढका हुआ है ये थोड़ा सा हाँ। खुले आज। वो तो मसला होता है, आपको पता है, मैं जब पानी पीता हूँ ना, एक बंदा रखा हुआ है जो मूछा ऊपर उठाता है, फिर मैं पानी पीता हूँ। तो मूंछे वरना तो आपके पानी नहीं होठों पी का सकता मैं। घूंघट है। हाँ जी, ये मेरे होंठों का घूंघट है। वाह क्या बात है आपकी, क्या बेहतरीन लफ्ज आपने दे दिया। अच्छा गंडापुर साहब, मेरा सवाल तो बीच में रह गया। मैंने आपसे ये पूछा था कि जलसों के लिए इतना पैसा कहाँ से आता है आपके पास? देखिए भाईजान, जलसों का जो पैसा है वो हम लोग चंदा चुंदा करते हैं। चंदे से इतने बड़े जलसे नहीं होते। कहीं केपी की हुकूमत का सारा बजट और फंड तो नहीं लगा रहे आप जलसों के ऊपर? मेरा ख्याल है आपको इश्तिहार चाहिए केपी गवर्नमेंट का। नहीं, मैंने क्या करना है इश्तिहार का? नहीं, आपने तो कुछ नहीं करना, आपके चैनल को इश्तिहार तो नहीं चाहिए केपी गवर्नमेंट का। अच्छा, जिनको आप इश्तिहार देते हैं, जलसे भी कर रहे हैं, इश्तिहार में पैसा भी लगा रहे हैं, अखबारात को भी दे रहे हैं, टीवी को भी दे रहे हैं, कैसे अखराजात पूरे हो रहे हैं? सुबह की तो तरक्की कोई नज़र नहीं आ रही बातों के अलावा। देखिए भाईजान, सुबह में ग्रीनरी ऑलरेडी आई हैव, ठीक है, और वो है क्या कहते हैं उसको, वो नेचुरली एक ग्रीनरी है, हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब मैं अपने सूबे के लिए क्लेम कर सकता हूँ कि मिलियन ऑफ ट्रीज ऑलरेडी वी हैव इन आर लैंड एंड वी हैव, मतलब हमारे पास कल्टीवेशन वाली जो ज़मीन है वो भी बहुत ज़्यादा है, रिसर्च भी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और ऐसी बात नहीं है, आपको शायद किसी ने गलत बताया है। लेकिन अच्छा अगर ये बताएं, अभी कोई इश्तिहार वगैरह चाहिए तो अमीर मोहम्मद जो मेरा ड्राइवर है उससे ज़रा बात कर लीजिएगा, वो आपका मसला हल कर देगा। अच्छा, कत्ता कलामी की माजरत, ये बताएं कि आपके जो जितनी भी पार्टी के जलसे होते थे बहुत गुलकार आते थे, आजकल गुलकार नहीं आ रहे। देखिए मसला ये है कि आजकल टाइम होता है बहुत थोड़ा सा। आपको पता है पंजाब हुकूमत जो है ना वो बहुत कंजूस हुकूमत है। पंजाब हुकूमत कहती है कि भाईजान जलसा जो है वो 2 घंटे में ख़त्म करो। 2 घंटे में कैसे जलसा ख़त्म हो जाए? इतने में तो डीजे के गाने चलते हैं। आपको पता है हमारा म्यूजिक शो होता है, हमारा कोई जलसा थोड़ी होता है। मतलब एक बंदा आएगा वो तकरीर करेगा, उसके बाद म्यूजिक बोलेगा डग 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 डग,
फिर उसके बाद फीडर डाउन होगा, फिर उसके बाद फीडर ऊपर होगा। कौन सा फीडर ऊपर होगा? माइक वाला। फिर माइक पे बंदा बोलेगा, फिर उसको बढ़ाएगा चुप चुप कर, तो फिर उसके बाद जो है ना वो फीडर ऊपर होगा म्यूजिक का। तो इसलिए हमारा जो है ना वो म्यूजिक शो होता है, जस्ट लाइक अ रेडियो शो, यू नो अबाउट द रेडियो शो। जिस तरह रेडियो शो होता है ना, वो उस टाइप का हमारा काम होता है। अच्छा ये बताएं, पेशावर के जलसे की तैयारियां कैसी हैं? देखें, पेशावर के जो जलसे हैं वो इंशाल्लाह हम लोग एक बड़ा जलसा करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम लोग। और कराची भी वी हैव प्लान, एंड सक्खर आल्सो हम लोग इंशाल्लाह वहाँ पे भी करेंगे, और पूरे पाकिस्तान में जलसे करेंगे इंशाल्लाह। बल्कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि न्यूयॉर्क में भी काफ़ी सारा क्राउड है पीटीआई का, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक जलसा ब्रुकलिन में भी कर लें। आपका क्या ख्याल है? कर लें, बिल्कुल कर लें, अच्छा हो जाएगा। बहुत चाहने वाले हैं आपके यहाँ पे। ब्रुकलिन में कोई मैदान शिदान है ऐसा जहाँ पे मतलब पीटीआई के लोग समा जाएं? क्योंकि आपको पता है पीटीआई के तो करोड़ों लोग आते हैं। मेरे ख्याल से ब्रुकलिन छोड़ा, आप बीच पर कर लें, कोनी आइलैंड, ज़बरदस्त हो जाएगा। भाईजान वो वॉलीबॉल का मैच नहीं करवा रहे हम, मैं आपको पीटीआई के जलसे की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जहाँ पे थोड़ा माहौल बन जाएगा ना। पीटीआई का जलसा भले आप दुनिया में कहीं पे भी रखें, करोड़ों लोग आते हैं। ये पीटीआई के करोड़ों लोग होंगे इधर अमेरिका में? नहीं, करोड़ों नहीं होंगे, होंगे 5-1 हज़ार निकलेंगे बस। बस। अच्छा, फिर हम लोग वर्चुअल जलसा कर देंगे। वर्चुअल कर लें। हाँ जी, वर्चुअल जलसा कर लेंगे। अच्छा ये बताएं, प्रोग्राम का बस वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, थोड़ा सा वक्त है मेरे पास। अब कुछ कुंडी साहब का जिक्र हो जाए, उनके बारे में बताएं। सुना है वो रिश्तेदार हैं आपके? देखें, बदकिस्मती से कुंडी जो है वो मेरा रिश्तेदार है, ठीक है, लेकिन मैं उसको ओन नहीं करता। मैं तो अभी उसके गाड़ी का जो पेट्रोल है वो भी बंद कर दूंगा, उसको मैं घर से निकाल दूंगा। उसके बाद वो कहता है मैं एनेक्सी वेनेक्सी में रहूंगा। और भाई मैं तुझे रहने दूंगा तो तुम यहाँ पे रहोगे ना। केपीके मेरा सूबा है, आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट लैंड, जिसको कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा। समझ आई? नहीं आई? उसको समझ नहीं आ रही, आपको आ गई है, उसको समझ नहीं आ रही। अब देखे ना, वो मेरा मजाक उड़ाता है। मुझे उस दिन लतीफ़ा भेजा है, मुझे कहता है कि ना वो गंडा तो जो है ना वो प्याज को कहते हैं पंजाबी में। तो सही तो कहा उन्होंने, गलत तो नहीं कहा। भाई मेरा नाम तो गंडापुर है ना, ठीक है? गंडे से मेरा क्या लेना देना? सही बात। मतलब मैं को मतलब क्या प्याज, मतलब मेरा और प्याज का रिलेशनशिप क्या है? कोई तो रिश्ता होगा। नहीं देखे, जिस तरह का मैं वजाहत मेरी है, इस तरह का बंदा तो मतलब आपको पता है वो करेले शरेले से आप मेरी मुशाबत रखें तो चले, लगता है बंदा है कड़वे मिजाज का। हाँ जी, कड़वे मिजाज का है थोड़ा सा बंदा। ये क्या मतलब वो उसको कहते हैं, प्याज को कहते हैं, बसल को कहते हैं। ये कोई बात करने की? कोई पैगाम आप अपने सपोर्टर्स को देना चाहेंगे? क्योंकि हाँ जी, मैं बिल्कुल एक पैगाम आप। देना चाहूंगा, बल्कि मैं आपके इस पे अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, गंडापुर की गंडेरियाँ। गंडेरियाँ? हाँ जी। तो आपने जो है ना जी देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और उसको हम लोग ईद पर रिलीज़ करेंगे, जुमे के दिन रिलीज़ करेंगे, और हम लोग उसको पाकिस्तान के 21 बड़े शहरों में सिनेमा घरों पे इकट्ठे रिलीज़ करेंगे। अच्छा, अपनी फिल्म जो है ना आप खान साहब के जेल से रिलीज होने से पहले रिलीज कर दीजिएगा, वरना तो वो फ्लॉप हो जानी है फिर, क्योंकि खान साहब अगर आ गए तो उनसे बड़ी तो फिल्म कोई है नहीं फिर, आपको पता है। देखें अली अब्बास साहब, आई नो द प्रोसेस के फिल्म जो है वो फिर डब्बा हो जाती है। तो आई विल ट्राई के जो उसका रिबन कटे रेड कारपेट का, उसमें खान साहब साथ हो, और वो जो कैंची हो वो खान साहब के हाथ में हो, और जो पिंक और रेड कलर का जो हम रिबन काटेंगे गंडापुर की गंडेरियाँ, और ये इस फिल्म का जो नाम है वो जीपीजी है, जिस तरह से वो RRR आई थी, ठीक है? तो इस तरह की हम लोग जो है ये फिल्म बना रहे हैं, और इंशाल्लाह आप उसमें देखेंगे। हीरो का किरदार उसमें आपका भाई कर रहा है। मेरा भाई बुलवाया आपने उसको? नहीं, मतलब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप कर रहे हैं? हाँ जी, हीरो का किरदार उसमें मैं कर रहा हूँ। ठीक। और हीरोइन का भी हम लोग सोच रहे हैं। वो वैसे मुझे कह रहे हैं कि सारे के हीरोइन को कास्ट करने से बेहतर है कि हम जो है ना कोई चैनल से कोई रोबोट ऑर्डर कर दें।
नाजरीन, हमारे साथ आज अली अमीन गंडापुर साहब थे और वो अभी बता रहे टाइम हैं, खत्म हो गया प्रोग्राम का, बस जी बस अब खत्म हो मैं गया। जा सकता हूँ? बिल्कुल आप जा सकते हैं। ठीक है भाई। तो गंडापुर साहब एक फिल्म बना रहे हैं, गंडापुर की गंडेरिया, जो ईद पर रिलीज गंडापुर करेंगे। की गंडेरिया, देखे नाम अगर गलत लेंगे ना तो फिल्म फिर मसला हो जाता है। जी, गंडापुर की गंडेरिया। हाँ जी, हाँ तो ये खान साहब के रिलीज होने से पहले इनका इरादा है उसको रिलीज कर दें। फिलहाल यहाँ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम टीम के साथ हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।